Bismillahirrahmanirrahim. Lecture 21. We are going to start income from business. In this lecture, we will learn that what is business first of all, types of business, and general rules relating to taxability of income from business. So, first of all, what is business? Business includes any trade. According to Income Tax Ordinance 2001, the term business include any trade, manufacturing, commerce, profession, vocation or adventure are concerned in the nature of trade, commerce, manufacture, profession or vacation, but doesn't include any employment. So we will discuss one by one this, what is trade, what is manufacturing. So we are going to discuss one by one. First of all, what is trade? Trade means selling of goods for the purpose of making profit. Trade means selling of goods. This is the first point, selling of goods. Why we sell goods? Sell goods for the purpose of making profit. This is the second point. We sell goods for the purpose of making profit which a trader has purchased or manufactured. Either the goods is purchased or manufactured by a trader. So it is very simple. This what is trade? There is a difference between trade and manufacturing. So what is manufacturing? It means to work upon something by hand. This is the first point. To work upon something by hand or machine to convert. कहाँ कन्वर्ट करना है इसको? into a form which has greater value to consumer. उस फॉर्म में कन्वर्ट करना है कि जिस अगर पहला वाला फॉर्म है उसकी वैल्यू कम है कंज्यूमर के लिए, कस्टमर के लिए, अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है. लेट्स सपोज कन्वर्जन ऑफ वुडन पीस इनटू अ चेयर. इसकी एग्जांपल ये है, अगर हमारे पास लकड़ी है, सिर्फ वुड है, तो उस वुड की शायद इतनी वैल्यू ना हो. But when we convert the chairs into but when we convert the wood piece into a chair, the value of wood automatically increase. तो ये जो वैल्यू इंक्रीज होती है, ये है, इस काम को कहते हैं, जो हम हाथ से भी कर सकते हैं या मशीन से कर सकते हैं, तो इसको कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग. तो इनसे जो हमारे पास इनकम आती है, क्या उस पे जो है कितना टैक्स इम्पोज होता है और कितना नहीं होता, ट्रेड वाले पे भी और मैन्युफैक्चरिंग के लिए. इसका हम वन बाय वन बात करते हैं. उसके बाद है कॉमर्स. व्हाट इज कॉमर्स? इट इंक्लूड्स ऑल द इंस्टीट्यूशन एंड एक्टिविटीज व्हिच आर हेल्पफुल इन ट्रांसफरिंग गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द अल्टीमेट कंज्यूमर. व्हाट आर द मेन पॉइंट्स हियर? इट इंक्लूड्स द इंस्टीट्यूशन एंड एक्टिविटीज. Institutions and activities which are helpful in transferring goods. This is the second most important point. From the place of production to the ultimate consumer. Transformation of goods from the place of production to the ultimate consumer is known as commerce. और ये जो है कोई इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है और कोई एक्टिविटीज भी हो सकती है. लेट्स सपोज एग्जांपल्स: transportation, banking, insurance and advertisement. This is the example of commerce. It is very simple. हमारे पास वो इंस्टीट्यूशन या वो एक्टिविटीज होती है, यहाँ पे जो इंश्योरेंस है और बैंकिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है. बैंकिंग जो है ये इसके इस तरह, जो एडवर्टाइजमेंट है ये एक एक्टिविटी होती है, इसकी कोई कंपनी नहीं है, इंस्टीट्यूशन नहीं होती. तो ऐसे जो हमारे पास इंस्टीट्यूशन होते हैं या एक्टिविटीज होते हैं जो कि हेल्पफुल होते हैं ट्रांसफरिंग गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द अल्टीमेट कंज्यूमर, जो कि एग्जांपल भी गिवन है यहाँ पे, तो इसको वो कॉमर्स में आ जाती हैं. आगे आते हैं बात प्रोफेशंस आर वोकेशन.
Services rendered. This is a highlighting. Services rendered on the basis of manual skill or specialized knowledge. What is manual skill and specialized knowledge? And experience in a particular field is known as profession or vocation. प्रोफेशन जो होता है, जैसे डॉक्टर है, अब डॉक्टर जो काम है पेशेंट का, ठीक है, उसके पास पेशेंट आते हैं, डिफरेंट पेशेंट आते हैं उनके पास, तो उनके पास जो स्किल है स्पेशलाइज्ड, तो उसका प्रोफेशन का ऐसा होता है, उसको कहते हैं। अब जो डॉक्टर का काम है वो एक इंजीनियर नहीं कर सकता, नीचे एग्जांपल में देखते हैं। इसी तरह अकाउंटेंट अलग होते हैं और कारपेंटर्स अलग होते हैं, दे हैव स्पेशलाइज्ड स्किल इन देयर ओन फील्ड। अब जो डॉक्टर का काम है वो इंजीनियर नहीं कर सकता, इंजीनियर का काम ना डॉक्टर कर सकता। इसके अलावा इसके जो अपने फील्ड में इनके एक्सपीरियंस होते हैं और इनके पास स्किल्स होते हैं, तो इसको कहते हैं प्रोफेशन और वोकेशन। इनसे जो इनके पास इनकम आती है, ये भी एक बिजनेस का पार्ट है, तो उस पर कितना टैक्स इम्पोज हो रहा है, कितना नहीं होता, आगे हम न्यूमेरिकल में देखेंगे। आगे चलते हैं। कंसर्न any regulated system of the management of an organization which has an adequate degree of trade, commerce and manufacture, जो हमने पिछले ट्रेड, कॉमर्स एंड मैन्युफैक्चर इनको डिस्कस किया, तो उनकी जो है एडुकेट डिग्री उसके पास हो, ऐसा सिस्टम हो, रेगुलेटेड सिस्टम, तो उसको क्या कहते हैं हम? कंसर्न कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडवेंचर। Any transaction is termed as an adventure in the nature of trade if some elements of trade are present therein. Any transaction in term is adventure. कोई भी transaction को हम जो है adventure कहेंगे, adventure होंगे। In nature of trades, if some of elements of trade are present, अगर उसके कुछ एलिमेंट है वहां पे प्रेजेंट हो उस ट्रांजैक्शन, तो वो ट्रांजैक्शन जो होती है वो हमारे पास एडवेंचर है। अब नोट, द बिजनेस डजंट इंक्लूड एम्प्लॉयमेंट, इट्स मीन द इनकम ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय डजंट इंक्लूड इन द बिजनेस। इट्स मीन बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम द एम्प्लॉयमेंट एंड द ऑनर, the accounting principle, separate entity principle. It's mean the business is separate from the owner and employment. The activity of employment and employer or employee is separate from the business activities. It's mean the business doesn't include any employment. So income chargeable under business section, कौन से इनकम पे जो हम टैक्स हमारा जो है, जैसे कि हमने रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट की बात की थी। Here we discuss the income chargeable under business section 18. It includes profit and gain and tax year. How much profit gain in the business? Any income derived by trade, profession, AOP, sale of good or services. जो हमारी प्रोफेशन है, ट्रेड है, जिसको हमने 1 by 1 डिस्कस किया है, AOP है, इन्होंने जो गुड को सेल किया है या सर्विसेज प्रोवाइड किए हैं, तो उनके इनमें से इनके पास कितना इनकम डिराइव हुआ है, तो इन पे टैक्स कितना इम्पोज होगा, we will discuss one by one and numerical. Income from hire or lease of tangible movable property. हमारे पास मूवेबल प्रॉपर्टी जो होती है और कुछ इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, टेंजिबल, और उसके अलावा जो इनटेंजिबल है, गुडविल है वगैरह, इस चीजों को यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करें। बट इनकम फ्रॉम हायर और लीज ऑफ टेंजिबल जो मूवेबल प्रॉपर्टी है, ये जो है चार्जेबल है अंडर बिजनेस सेक्शन 18 के अंडर। सो व्हाट इज इनकम चार्ज? किस किस पे इनकम चार्ज होता है? प्रॉफिट ऑन डेट, मैनेजमेंट फी डिराइव्ड बाय मैनेजमेंट कंपनी,
फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट आर परक्विजिट डिराइव्ड इन द कोर्स ऑफ बिजनेस रिलेशनशिप। इसके अलावा जो बिजनेस रिलेशनशिप में जितने उसके जो बेनिफिट्स है या परक्विजिट है उसके फेयर मार्केट वैल्यू देखी जाती है। लेट्स सपोज एक जो बिजनेसमैन है वो अपने बिजनेस को अपनी इनकम को कम शो करता है, लेकिन उसी तरह के और बिजनेस हैं उनका जो प्रॉफिट होता है उनके जो बेनिफिट्स होते हैं तो एफबीआर उनके साथ कंपेयर करते हैं, उसके बाद उन पे टैक्स इंपोज किया जाता है। So this was the first part